हेलो बच्चों, आज आप लोगों को मैं मेंसुरेशन चैप्टर 14 का वर्कशीट 1 को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो वर्कशीट 1 है वो जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू अ फिगर दैट इज ट्रापीजियम। That means you must know about trapezium. What is trapezium? Okay, let's see first of all what is trapezium. After that, I will explain about its formula. Let's see. Four-sided figure. ठीक है, four-sided figure जिसका कोई भी एक पेयर ऑपोजिट पैरेलल होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? पैरेलल। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल भी होगा, अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो पैरेलल जनरली क्या होगा कि ये किसी भी ट्रापीजियम में पैरेलल लाइन होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है जनरली। ठीक है ना। इसका जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो सकता है, लेकिन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए ये एक ट्रापीजियम है। ठीक है, तो ट्रापीजियम वो फिगर है, वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर पैरेलल होगा। ठीक है ना। और ये दो पैरेलल लाइन का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। और ये जो पैरेलल लाइन है, इसके फर्स्ट पैरेलल लाइन को हम लोग स्मॉल लेटर a और सेकंड पैरेलल लाइन को हम लोग b से डिनोट करते हैं। तो इस तरह ट्रापीजियम ऐसे भी हो सकता है, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। देखिए कोई भी एक ठो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होना चाहिए। तो ये सारे के सारे ट्रापीजियम है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को ट्रापीजियम के एरिया से परिचय करवाता हूं, इंट्रोड्यूस करवाता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड हियर, all the question related to area only. So let's see, using one formula you can find all the problems related to this question. Okay, now let's see what is the formula to find out the area. So area of trapezium equals to 1 by 2 into a plus b. A plus b means sum of parallel side. Okay, remember this. A plus b means sum of parallel side into height. Height, which height? This height. That means the distance between, perpendicular distance between the parallel side. So this is the formula, square unit. Okay, area of trapezium. Now the first question we will see here. Find the area of trapezium. See what is the question? Find the area. Clearly it is written to find the area. And what are the terms given here? Whose parallel sides? 57 centimeter and 33 centimeter. And the distance between them, whose distance? The distance between the parallel side is 13 centimeter. So using this I am going to draw a diagram. See question number 1. So this is a trapezium. A rough diagram. A
B, C, D, and this is the perpendicular distance between the parallel sides. These two are parallel sides, and according to question, the first parallel side is 57 centimeter, the second one is 33 centimeter, and the distance between these two parallel sides is 13 centimeter. That means here we can see, let A equals to, A means the first parallel side 57 centimeter, and B equals to the second parallel side 33 centimeter, and height, the distance between two parallel sides is 13 centimeter. This is 57, 33 and 13 centimeter. Now you have to find out area of trapezium. Okay, 1 by 2 into sum of, you can see here the sum of parallel side, that means A plus B, that means this plus this, 57 plus 33. Let's see this A, the value of A and the value of B. We consider this to A as A and B into 13C. This is square unit, that means this is centimeter, so square centimeter. Now add this to 1 by 2 into 7, 3, 10, 5, 3, 8, 1, 9 into 13 square centimeter, and this 45 times. So the product of 45 into 13 equals to 585 square centimeter. So this one is the answer of this question. This one is the area of this trapezium. So now the second question. I hope this is very easy for you, and you will able to do the question just like this one. Now question number 2. So question number 2, let's see question number 2. See the area of trapezium. See, it is already given in this area, but in this question it was asking the area, but in this question the area पहले से ही इसमें दिया हुआ है. वन ऑफ द पैरेलल साइड, देखिए इसमें से एक पैरेलल साइड दिया हुआ 64, एक पैरेलल साइड मान लीजिए A है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग H कंसिडर करते हैं, वो दिया हुआ 17 सेंटीमीटर. देखिए लिखा बिटवीन द पैरेलल साइड, मीन्स ये जो दिया गया ये H का वैल्यू दिया हुआ है. फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड. अदर पैरेलल साइड मीन्स B का वैल्यू निकालना है आपको. मीन्स इस क्वेश्चन में ओवरऑल देखा जाए तो ये एरिया दिया हुआ है 850, और ये फर्स्ट पैरेलल साइड आप A कंसिडर कर सकते हो. A का वैल्यू 64 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स H का वैल्यू 17, और सेकंड पैरेलल साइड अदर पैरेलल साइड B का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है. तो सेम वही फॉर्मूला से आपको वहां निकाल लेना है. तो चलिए इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एरिया जो दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, वो स्पेशली 850 स्क्वायर सेंटीमीटर ये दिया हुआ है ना. और क्या दिया हुआ, देखिए वन ऑफ द पैरेलल साइड, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, जिसको आप A कंसीडर कर सकते हो 64 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट है वो H का वैल्यू दे दिया गया है यहां पर 17 सेंटीमीटर. आपको सेकंड पैरेलल साइड लेट कर लें. लेट द लेंथ ऑफ second
पैरेलल साइड बी सेंटीमीटर। देखिए इसको बी ही आप कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप एक्स भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर से मैं यहां पर ये लाइन को ले आता हूं। देखिए एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एज वी नो दैट द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रापीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इक्वल्स टू 850। यदि आपके सामने 850 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स इट्स टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 850। अब सिंपली आपको इस फील्ड को फिलअप करना है और सॉल्व कर देना है ना। 1/2 इंटू, देखिए ए का वैल्यू जो है वो 64 है, आप यहाँ 64 पुट करो, और जो बी का वैल्यू है वो दिया नहीं गया है, वो हम लेट कर लिए, चलिए ये यहाँ लिख दिया। और एच का वैल्यू देखिए आप देख सकते हो 17 है, और यहाँ 850। अब इसे आपको सॉल्व करके बी का वैल्यू निकालना है ना, तो आप 17 को आप इधर देखिए, आप इसको इससे रिड्यूस कर सकते हो, है ना, आप ऐसे इसको रिड्यूस कर सकते हो। 50 टाइम्स में कट गया ये कंप्लीटली, और इधर जो बचा हुआ है आप इधर देख सकते हो, तो ये 64 प्लस b/2, देखिए 2 है ना, और ये 50/1। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करके हम लोग जब पाएंगे तो ये 64 प्लस b इक्वल्स टू 52 जा 100 हुआ। अब आप b का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, b इक्वल्स टू करने क्या है 100, ये आपको इधर ले आना है -64। अब मैं यहां तक तो पहुंचा दिया, अब इसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हो, जो आएगा वही सेकंड पैरेलल साइड होगा। तो समझ गए बच्चों। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूं, है ना। देखिए द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, सेम देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है, ट्रापीजियम का एरिया दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स ए प्लस बी का ये वैल्यू दे दिया हुआ है। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब यही ना होता है। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, आपको h निकालने हैं। मीन्स यहां एरिया दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, और h आपको निकालना है। तो यहां पर बच्चों देखिए, यदि मैं देखूं यहां पर फिर से आपको दिखाता हूं, सेम उसी तरह का पैटर्न से मैं बनाने वाला हूं। एरिया ऑफ ट्रापीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस बी इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला, जैसा कि आप लोग जानते हो। और यहां पर इस फील्ड को आपको फिलअप करना है। एरिया ऑफ ट्रापीजियम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1586 दिया हुआ है, और यहाँ 1/2 इंटू आपको जैसा कि मैं बताया सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू कंप्लीट वैल्यू दिया हुआ 122, मतलब ऐड करके ही दिया हुआ, इंटू h, आपको h ही लिख देना है क्योंकि ये तो आपको निकालने हैं ना। तो आप यहाँ पर लेट कर सकते हो, लेट द हाइट बी h सेंटीमीटर, ये आप लेट कर लो। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है ना। अब ये 2 से देखिए ये डिविजिबल हो जा रहा है 61 टाइम में, और इधर जो बचा हुआ है 1586, इसको भी आप 61 से रिड्यूस कर सकते हो, 26 टाइम में ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको रिड्यूस करके 26 पा रहे हो। तो फाइनली हम लोग देखिए एक लाइन में ही आंसर को ले आए। फाइनली हम लोग को क्या मिला, देखिए इधर तो कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ h इक्वल्स टू 26, दैट मीन्स h इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर, सो इजी। अब मैं
लोगों को कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन का जैसा ही फोर्थ भी है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए एरिया दिया हुआ है एंड द टू पैरेलल साइड, देखिए ये वाला और ये वाला दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? हाइट। सेम इसी तरह आपको ये देखिए आपको लिखना क्या है, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसी तरह लिखिएगा 1/2। इसी तरह ये ए और बी का वैल्यू जो है यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स दिए गए हैं वो आप देखो यहाँ पर देखिए एक 8 दिया हुआ है और एक 60 डेसीमीटर दिया हुआ। आपको डेसीमीटर में ये देखिए ये एरिया जो है मीटर में है ना, आपको ये 60 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज यू नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है। दैट मीन्स 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 60 डेसीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर। तो अब आपके सामने 6 मीटर है, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैं। 8 मीटर ये है और ये 28 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ ए के जगह पर आपको 8 लिखना है, बी के जगह पर 6 लिखना है और ये जो मैं 1586 लिखा था इसके जगह पर आपको 28 लिखना है और सॉल्व कर देना है, बस पता चल जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं दिखाता हूं। देखिए क्या है, फाइंड द हाइट। आपको हाइट निकालना है, सेम इसी का जैसा क्वेश्चन है। हुज एरिया, देखिए एरिया दिया हुआ है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाला मीन्स ये 4 और 5 डिट्टो एक जैसा है बच्चों। देखिए इसमें भी आपका दो ठो पैरेलल साइड का जो वैल्यू मीन्स ए और बी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, यहाँ भी देखिए ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और ये एरिया दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट, h निकालना। तो इसी का कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हो। तो ये देखिए 6 नंबर, टोटल इसमें कितना क्वेश्चन 12। आज मैं आप लोगों को 6 नंबर तक ही इस वीडियो में कॉन्सेप्ट देता हूं। देखिए 6 नंबर जो है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए 12 स्क्वायर मीटर इफ इट्स हाइट 3 मीटर मीन्स h दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड, मीन्स आपको निकालना है सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स a प्लस b का वैल्यू। सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स a प्लस b, वो निकालना है। तो चलिए मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं। बहुत इजी स्टेप है ये एक्सरसाइज तो, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप यही लाइन देखिए, ऊपर वाला लाइन मैं यहां फिर से लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। आप यहां पर एरिया ऑफ ट्रापेजियम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 12 स्क्वायर मीटर है और ये 1/2 इंटू आपको यही वैल्यू निकालना है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आप इसे यूं ही लिख दो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट जो है वो दिया गया 3 मीटर। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहले ही ऐसे ही लिखना। देखिए बच्चों ये 3 से तो पहले इसमें 1 से 3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा और ये a प्लस b होगा। अब जब इसे आप 3/2 को आप इधर लेके आओगे तो ये 12 और बाई में ये आ जाएगा 3/2 क्योंकि ये 3 इंटू है और इधर a प्लस b बचा हुआ है और आपको यही वैल्यू भी निकालना है। सो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 12 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू a प्लस b। अब ये 3 4 जा 12। फाइनली हम लोग को क्या मिला, देखिए ये आप पहले लिख दो a प्लस b इक्वल्स टू 4 2 जा 8। और ये जो यूनिट होगा आप इसमें सारा का सारा यूनिट जो है वो मीटर में है, तो ये आंसर मीटर में है। तो आपके सामने सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया, a प्लस बी का वैल्यू 8 मीटर। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और आगे के वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो की मदद से बना लोगे, है ना बच्चों।